Kashmir Ladakh Pensioners United Front is a non-political platform representing lakhs of pensioners and senior citizens across Jammu and Kashmir and Ladakh. Main focus of today's press conference is to support the nationwide call given by All India State Pensioners Federation on 23rd of June 2025, in which pensioners throughout India will submit memorandum to the Honorable Prime Minister of India through deputy commissioners, district collectors from all the districts of the entire country regarding the grave concern of the pensioners of the country. All the district presidents of Jammu and Kashmir Pensioners United Front are directed to support the program by submitting memorandum through concerned deputy commissioners. The from the benefit of 8th Pay Commission and from 8th Pay Commission, which has come to public domain from different media houses and reliable sources. The passing of finance bill in the parliament is cause of concern for crores of pensioners throughout India. The equity in pension in respect of the past pensioners and new pensioners is maintained on the basis of Supreme Court judgment passed in 1982. 7th Pay Commission also maintained the equity against the pensioners retired before 1/1/2016 and retired on or after 1/1/2016 till date. It is to mention here that if any error is evident in the judgment, it can be rectified by adopting the prescribed legal procedure, but it would not be a healthy legacy to amend the established law to negate the established justice by using that pension is a property, and prior to the 44 amendment, right to property is a fundamental right. So we appeal to the Government of India to adopt pensioner senior citizen friendly attitude, and any move of Government of India to exclude pensioners from 8th Pay Commission benefit will be fought tooth and nail by all democratic means. We appeal to the Honorable Prime Minister of India for his personal intervention so that pensioners of the country will have a sigh of relief. It is unfortunate that Government of Jammu and Kashmir is totally non-serious about the legitimate rights of the pensioners of Jammu and Kashmir and Ladakh. And are being deprived from their legitimate rights, perks, and despite repeated requests and representations from the Pensioners United Front. It is a grave concern. Debarring pensioners from gratuity, leave salary, commutation leave, different attitude from the Government of Jammu and Kashmir towards its employees and pensioners is totally unacceptable and brazen violation of prescribed laws. One more shameful act of the government is evident from the fact that commutation leave has been sanctioned in favor of pensioners, but not credited to their account. But installments are being deducted from their family pension. This is a gross violation of the pensioners' rules, and being deducted from the central government employees and pensioners of central government employees and pensioners of central government employees are getting 1,000 medical allowance. And UT government has also UT government of Ladakh has also enhanced medical allowance from 300 to 1,000. But state government, despite the commitment of the Honorable Chief Minister, our file is getting dust at the corridors of the Civil Secretariat. Despite court orders, contempt against government regarding the excess deduction of commutation loan, Government of Jammu and Kashmir seems non-serious on the court directions. एक अहम मसला है जो हम सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट पर वो कम्यूटेशन लीव लेते हैं, वो सरकार उससे लोन देके वापस ले जाती है. जो सरकार ने इंस्टॉलमेंट फिक्स किए उनमें 10 साल और 8 महीने में वो लोन कंप्लीट होता है. लेकिन नॉन सीरियसनेस इतनी देखो, जुल्म इतना देखो, 15 साल तक सरकार पेंशनर्स से वो अमाउंट काटती है. द पेंशन ऑफ पेंशनर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर has been should be enhanced at the rate of entire country, should be enhanced 5% after every 5 years and after retirement instead of 20% at the age of 80. इसका हमारा मतलब है कि सरकार जब कोई पेंशनर 80 एज को कवर करता है उसको 20% एक्सेस पे मिलती है, लेकिन 80 एज तक तकरीबन 5% भी नहीं पहुंचते हैं. हमारा सरकार से मुतालबा है अगर आपको ये 20 बाद कबर पर इनाम देते हैं, ये हमें तस्लीम नहीं है.
It is unfortunate that despite passing Senior Citizen Act in 2017, यहाँ की सरकार ने 2017 में सीनियर सिटीजन एक्ट लागू किया है। हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में सीनियर सिटीजन एक्ट लागू है और सीनियर सिटीजन उसका बेनिफिट लेते हैं, लेकिन यहाँ एक्ट पास होने के बाद भी जो हमने सरकार की नोटिस में बुलाया, आज तक उस एक्ट पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इमीडिएट रिलीज ऑफ फ्रीज DA इंस्टॉलमेंट ऑफ कोविड पीरियड, restoration of old pension scheme in favor of employees, implementation of SRO 59 of 1990 in favor of all mechanical departments and removal of pay norms all departments, regularization of casual laborers. 60,000 casual laborers are desperate enough. They are fighting for the last 25 years. So many daily wagers are being dead during duty hours, but nobody takes care of their rights. And we request the government of Jammu and Kashmir that they have framed the committee regarding the regularization of the daily wagers. They should immediately speed up that, and all the regular daily wagers, casual laborers, and all the temporary employees working in all departments, including central government employees, they should be regularized, and their job security should be order should be issued for their job security. One more thing, हमारे पब्लिक सेक्टर में जो हमारे मुलाजिम काम कर रहे थे वो रिटायर हो गए हैं, पब्लिक सेक्टर तो डिफिसिट में है, न उनको पेंशन मिलता है, न उनको ग्रेजुएटी मिलती है, न कोई पैसा जो उन्होंने वहां CP फंड में भी रखा वो इनको मिलता है। आपके माध्यम से हम रियासती सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि पेंशनर्स के जितने भी मामला हैं मरकजी सतह पर, रियासती सतह पर, उन मामला को फौरी तौर हाल किया जाए। मरकजी सतह पर ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन ने एक प्रोग्राम दिया है 24 तारीख को। हम यहाँ भी हर एक जिले में हमारा मेमोरेंडम जाएगा। हम वहां के वजीर आजम से भी इल्तिमास करते हैं कि पेंशनर्स को अगर सरकार ने 8th पे कमीशन में एक्सक्लूड किया है तो नेशनल लेवल पर टूथ एंड नेल फाइट आपके माध्यम से यहाँ रियासती सरकार के नोटिस में लाए हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर साहब से इल्तिमास करना चाहता हूँ, डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ द पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयज गवर्नमेंट। एनफ इज एनफ। अगर उन्होंने आप इन मामलों को सीरियस नहीं लिया तो हमारे पास कोई, हम सीनियर सिटीजन होके, पेंशनर्स होके, हम रिटायर हुए हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर, जुदोजहद हमने सिखाया है लोगों को, जुदोजहद से हम रिटायर नहीं हुए। हम अपने मामला के लिए अभी चुस्त और दुरुस्त है, हम अपने मामला के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तमाम डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मीन्स तैयार करके। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आप शॉर्ट टर्म नोटिस में और हमारे बहुत सारे और भी एम्प्लॉयज हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूं। हमारे आयाज हैं, हमारे कंटेंजेंट पेड वर्कर्स हैं, हमारे कुक्स हैं, बाकी आज मुलाजिम हैं, उनकी बात भी मैं यहाँ करता हूं। उनके मामला को भी सरकार को हल करना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमने आपके लिए थोड़ा पानी का, इस साल पेंशन हुए, रिटायर हुए, एक मिनट, उनका जो कम्यूटेशन है वो सैंक्शन हुआ है, लेकिन उनके अकाउंट में नहीं डाला गया है। जनवरी से उनके फैमिली पेंशन से किस्त कटता है। यह ब्रेजन वायलेशन है, यह नाइंसाफी है, डकैती है, ब्रेजन डकैती, बड़ा स्कीम, यह ब्रेजन डकैती है। ये मैं आपके, क्योंकि आप ही हमारी बात को बाला ऐवानों तक पहुंचाने का वाहिद जरिया है। आप इस बात को पहुंचे, आप उन पेंशनरों से पूछिए जो कैंसर पेशेंट है लेकिन उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, जो कैंसर पेशेंट है उनको जीपी फंड है, और हमारे जो इन सर्विस मुलाजिम है वो बेचारा बेटी की शादी, कोई बीमार हो, उसके लिए जीपी फंड के लिए एक साल से अभी जीपी फंड उनको नहीं मिलता है। ये क्या तूफान है? पैसा मेरा, मैंने पेड़ पर पत्थर बांध के पेड़ पर ये पैसा जमा किया, जब मैं मांगता हूं उसके पास है नहीं। ये बदअमनी है या खयानत है हमारे अमानत में। ऐसा ही चलता रहा, दूसरे किस्त में भी ऐसा ही हुआ, तो क्या वी विल कम ऑन रोड्स। आपको पता है हमारी हिस्ट्री रही है, हमने हर कोई मामला सड़क पे हल किया है, कोई परेड में किसी ने नहीं दिया, और आप भी हम सड़क पे निकलेंगे और लड़ेंगे, जोश खरोश से लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, पीसफुली लड़ेंगे। डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। मैंने ये सरकार की नोटिस में लाया, चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में लाया, चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर की नोटिस में लाया, फाइनेंशियल कमिटी डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज की नोटिस में लाया, और मरकजी सरकार की नोटिस में भी हमने नहीं लाया। हम गवर्नर साहब को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग अब मर गए हैं और रेगुलराइजेशन सरकार उनको नहीं करते हैं। अब सरकार ने कमेटी बनाया है, मैं सरकार से मुतालबा करता हूं वो स्पीड अप प्रोसेस कर दीजिए, और वन टाइम जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, आरजी मुलाजिम है, आया है, कुक्स है, कंटेंजेंट पेड है, उन सबको, आंगनबाड़ी वर्कर्स, उन सबको वन गो में रेगुलर किया जाए ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी हो जाए, उनके साथ इस्तेमाल ना हो जाए। और दूसरा एक अहम मामला मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, जिस तो सरकार ने, मरकजी सरकार ने पास किया है। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में मिनिमम वेज एक्ट लागू है, लेकिन हमारे
हमारी रियासत में अब भी लोग 1000 महीने में लेते हैं। हमारी कंटेंजेंट पीरियड 1500 रुपए लेता है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर देख लीजिए, हमारी कूप और आया देख लीजिए, हमारे कैजुअल लेबर देख लीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट भी यहाँ ये अपने लिए अपने लिए कोठियां, अपने लिए तनख्वाह में 4 गुना इजाफा, सीडी फंड में इजाफा, सब CDF में इजाफा। और जब मुलाजिम की बात हो, जो सिस्टम चलाते हैं, जब ये भाग्य थे तब भी हमने चलाया, आज भी हम हमारे मुलाजिम चलाते हैं। लिहाजा मुलाजिमिन के इश्यूज का, पेंशनर्स के इश्यूज का अगर सरकार ने फौरी तौर हल नहीं किया, हम सब एक हैं, पेंशनर और मुलाजिम हम इकट्ठे। वो मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको सिखाया है, मैं उनके पीछे शीशे पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहूंगा, पेंशनर्स के मामला के हवाले से, उनके मामला करना चाहता हूं। मरकजी सरकार तक यह मैसेज करना चाहता हूं कि अगर मरकजी सरकार ने पेंशनर्स को 8th पे कमीशन से एक्सक्लूड करने की कोशिश की, तो मुल्कगीर सतह पर ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के झंडे तले हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, और जो भी फैसला उस ऑर्गेनाइजेशन का होगा, जम्मू कश्मीर के पेंशनर उस फैसले को मिन जमीनी सतह पर लाएंगे। और जो रियासती सरकार के बारे में जो मामला मैंने रखे हैं, रियासती सरकार से मैं कहना चाहता हूं, एनफ इज एनफ। अब उनको सीरियस होना पड़ेगा मुलाजमिन और पेंशनर्स के मसाले के हवाले से। अगर सीरियस नहीं हुए तो उनके अंदर सीरियसनेस लाना हमें आता है और हम लाएंगे।